Hello students, welcome to CACPIS Academy. Today's date is 11th of June. This side your Apurva sir. Welcome to this platform of the newspaper analysis. So अगर आपको अगर इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए @CACP_Assam and students don't forget to like our videos and subscribe to our YouTube channel. So as you know that prelims has passed and the mains is approaching in the month of September tentatively. So you must, those who are expecting to clear the prelims, so you must now prepare for the mains. और उस mains के लिए सबसे बहुत ज़्यादा important जो पेपर है वो है GS5, जो कि कंसिडर किया जाता है वो स्कोरिंग है, असम रिलेटेड पेपर है. तो अगर CACPIS अकेडमी कैन हेल्प यू इन एनी वे इन द असम पार्ट तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड और यू कैन जस्ट डाउनलोड आवर ऐप and get yourself enrolled into the course at just ₹1,499. So without any much delay, let's discuss our topics that what we will be doing. So these are the 5 topics that today we will be dealing with different GS papers. The first news is about India's demographic and the report by UNFPA. UNFPA, it is the acronym of United Nations Population Fund. Okay, it has given the data that India's population has hit 146.39 crore. All right, so let's see the other parameters which has been published into the report that India's population in 2025 is this, which has exceeded China, and China's population is 141.61 crore. So by this report we can also say that India has become the most populated country. This one data. So the total fertility rate of Indian women is 1.9, जो कि below the replacement rate है. Below the replacement rate was 2.1, बट लास्ट जब NFHS का डेटा आया था, NFHS के डेटा के हिसाब से वो 2.0 था एंड एक्सपर्ट्स ने ये रिकमेंड किया था कि ये 2.0 से नीचे नहीं जाना चाहिए. बट UNFP रिपोर्ट हैज सेड कि इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट. टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अ वोमन इज एक्सपेक्टेड टू हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स. कि वोमेन के जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स है दैट इज़ योर 15 ईयर्स टू 49 ईयर्स, इस रिप्रोडक्टिव एज के भीतर मदर्स वोमेन वो एवरेज इंडिया में कितने बच्चों को जन्म देती है, दैट हैज़ फॉलन बिलो 2.0, जो हमें इंडिया में रखना था 2.1 टू सस्टेन द पॉपुलेशन, बट इट इज़ 1.9. सो द प्रोजेक्टेड पीक पॉपुलेशन इज़ 170 करोड़ एक्सपेक्टेड इन 40 ईयर्स. की बाकी आने वाले 40 सालों में इंडिया का पॉपुलेशन 170 करोड़ होने वाला है. Okay, that it is a surge in population, but that is not a cause of concern. The cause of concern is different. The cause of concern is the elderly population, which is currently 7%. But when the population will be 170 crore, the elderly population will gradually grow. But the youth population or the working age population will tend to decrease. कि आज के डेट में 68% is the वर्किंग एज पॉपुलेशन. पर ये अगर रेट हो या फिर इससे नीचे अगर जाए, सो देयर इज़ अ चांस कि जो कि जापान और चाइना में भी देखा जा रहा है कि जो ओल्ड पॉपुलेशन है, कि आज जो हम यूथ है, आज जो हम वर्किंग एज पॉपुलेशन में है, आज से 20 साल 30 साल बाद वी विल बी आउट ऑफ दैट ग्रुप एंड वी विल ग्रो ओल्ड. तो हम उस एल्डरली पॉपुलेशन में हम कंट्रीब्यूट करेंगे. ओके, एंड अगर पॉपुलेशन ग्रो ना करे, बहुत मतलब जितना चाहिए उतना ग्रोथ ना करे, तो क्या होगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल हैव टू फीड अ लार्जर अमाउंट ऑफ पीपल. सो दैट इज़ द कंसर्न. सो एंड लास्टली इफ यू सी द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट इज़ मेन का 71 years and women have 74 years. Now India is moving into the stage 4 of demographic transition model. So what is this demographic transition model? Demographic transition model says कि every society passes through 4 stages of demographic transition. स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 में जहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई होते हैं, जहाँ पर लोग पॉपुलेशन ग्रोज
there are too many births but also there are too many deaths, तो इवेंचुअली जो है पॉपुलेशन वो स्टेबल रहता है. 2 में जो है डेथ रेट में डिक्लाइन देखने को मिलता है थोड़ा सा, बट बर्थ रेट रिमेन सिग्निफिकेंटली हाई. 3 में क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही गिरते हैं, बट डेथ रेट बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे जाता है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस. पर बर्थ रेट जो है वो स्लाइटली डिक्लाइन करता है. और स्टेज 4 में जो है बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन करता है, विच शोज अगेन अ स्टेबल पॉपुलेशन. ऑलराइट, so we see now low birth and death rates, aging population and shrinking family sizes, which are the symptoms of stage 4 demographic transition. अपॉर्चुनिटी डेमोग्राफिक डिविडेंड फ्रॉम हाई वर्किंग एज पॉपुलेशन, कि आज अगर हम देखते हैं कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो कि 68% है, तो उससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दैट कैन बी फेच्ड. बट द चैलेंज इज इन द अपकमिंग ईयर्स देयर इज इम्पेंडिंग एजिंग क्राइसिस, कि यही 68% एक दिन वो ओल्ड हो जाएंगे एंड दे विल एंटर दिस ग्रुप. और जो बर्थ रेट अगर कम है, where the females are producing less, the family is producing less number of children, जो बाद में यही प्रॉब्लम होगा कि कम लोग ज़्यादा लोगों को वो फीड करना होगा. The next news is about RTE funds and NEP dispute. Let's see the issue. News जो आज आया है, don't withhold states RTE funds, मतलब right to education, right to education over NEP row. So there is a divergence between center and state. Which state? The Tamil Nadu state. की जो issue है वो है कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु हैज़ नॉट एक्सेप्टेड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. ठीक है, तो RTE का जो फंड्स है वो गवर्नमेंट ने रोक दिया है. एंड द तमिलनाडु हैज़ एलिज्ड कि बिकॉज दे हैव नॉट एडॉप्टेड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, that's why the center has stopped the funds according to as per the RTE. all right, तो हमें यहाँ पर इशू को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम. as per the article कि around rupees 2151 crore is pending under समग्र शिक्षा अभियान, वो देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को तमिलनाडु गवर्नमेंट को. पर मद्रास हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि भाई आप तमिलनाडु गवर्नमेंट को जितने भी पेंडिंग अमाउंट है समग्र शिक्षा अभियान या फिर समग्र शिक्षा स्कीम के अंदर, वो आप जल्दी से उनको दे दीजिए, या फिर गिव देम फ्रॉम अ सेपरेट फंड, पर उनको आप फंड प्रोवाइड कीजिए. तो यहाँ पर इसके बाद जजमेंट के बाद व्हाट कुड बी द की टेक अवेज. तो जो की टेक अवेज है वो हम देख सकते कि as per section 7 of the RTE Act, section 7 of the RTE Act, both center and states have concurrent responsibility to RTE provisions. मतलब अगर दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रन द स्कूल्स अंडर RTE, राइट टू एजुकेशन. तो यहाँ पर और एक चीज़ जो जजमेंट में बोला गया है बाय द मद्रास कोर्ट, कि अगर सेंटर पैसा ना भी दे रहा है, पर वो स्टेट जो है वो प्राइवेट स्कूल्स को जो रीइंबर्स करके देना होता है उसको रोक नहीं पाएगा. मतलब इसको समझिए कि ये है तमिलनाडु एंड ये है प्राइवेट स्कूल्स. तो तमिलनाडु गवर्नमेंट को सेंटर से पैसा नहीं मिला, बट ही हैज़ टू रीइंबर्स अगर उन बाय द सबमिशन ऑफ द रिसीट्स उनको ये पैसा रिटर्न करके देना है. मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता है कि सेंटर से पैसा नहीं आया है, इसी वजह से वो प्राइवेट स्कूल को पैसा नहीं दे रहा है. उसको कहा जाता है कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक साथ. ठीक है. ऑल्सो द तमिलनाडु कैन नॉट, हाँ दैट वी हैव सेड दिस whatever I said, that is a statutory obligation under the RTE Act. ठीक है. So see a little bit about RTE Act. So what is this RTE Act says about? It provides free and compulsory education to children aged 16 to 14 years of age, 6 to 14 years of age. This section mandates 25% reservation in private unaided school. ये वाला आप याद रखिए, ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत लोगों को पता नहीं है. RTE Act it covers the private school also.
गवर्नमेंट से अनएडेड जो स्कूल है आरटीई के अंदर कुछ बच्चों को उनको एडमिशन्स देना होगा, जिसके लिए 25% सीट एवरी प्राइवेट स्कूल मस्ट रिजर्व, और स्कूल उसके लिए जो कंपेंसेशन है दैट विल बी पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, रीइंबर्समेंट टू प्राइवेट स्कूल इज डन जॉइंटली बाय सेंटर एंड स्टेट। ऑलराइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ समग्र शिक्षा स्कीम ये क्या है? ये तीन ये जो स्कीम है ये मर्ज किया गया है एंड लॉन्च इन 2018 बाय मर्जिंग सर्व शिक्षा अभियान, देन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन, इनको मर्ज करके बनाया गया समग्र शिक्षा अभियान। दैट इज योर प्रीलिम्स फैक्ट। ऑलराइट, एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है ये क्या है? पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको चेंज करने के लिए वो पॉलिसी है। बट यहाँ पर एक जो ट्विस्ट है कि स्टेट्स जो है वो मैंडेटरी नहीं है उनके लिए कि उस पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट करें। तो आप अगर थोड़ा सा पॉलिटी अगर हम देखते हैं, इफ़ यू सी द एडुकेशन एज अ सब्जेक्ट, जो एडुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। राइट, कॉन्करेंट लिस्ट यहाँ पर काम सेंटर भी करेगा, स्टेट भी करेगा। राइट, अगर कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके लेके अगर कोई विवाद हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच, तो यहाँ पर सेंटर का ही रोल प्ले होगा। ठीक है, तो पर यहाँ पर क्या इशू है कि इट इज़ अ पॉलिसी एंड नॉट एन लॉ। ये कोई एक्ट नहीं, इट इज़ अ पॉलिसी। सो पॉलिसी कैन बी रिजेक्टेड, बट अगर वो कोई लॉ है उसको मानना होगा। अगर एजुकेशन रिलेटेड आरटीई एक्ट जो है ये कोई भी स्टेट उसको नकार नहीं सकता है, वहाँ पर सेंटर का ही चलेगा। बट एजुकेशन पॉलिसी है, इट इज़ नॉट एन एक्ट, सो इट कैन बी रिजेक्टेड बाय द स्टेट। ऑलराइट, दैट इज अगेन अ वैलिड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो यू मस्ट नोट। Next, India-Pakistan diplomatic hazards. All right, this is based on another article, so we will discuss it holistically. See, this is the issue here कि if we see certain historical context कि India-Pakistan का जो relation है it is never good, because उनका जो division, उनका जो पाकिस्तान जो create हुआ है it is from a kind of rift only. सो इंडियन पाकिस्तान दे शेयर अ फ्रॉड हिस्ट्री रूटेड इन पार्टीशन तो हुआ है, पर अभी जो इशू है वो JNK को लेकर है। ऑलराइट, नाउ अभी जो यहाँ पर आर्टिकल में बात हुआ है इट इज़ द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द कश्मीर इशू। क्या कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करना ये सही है या ये सही नहीं है? पाकिस्तान जो है वो परसिस्टेंटली बार बार ये अटेम्प्ट कर रहा है कि बाहर ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में वो कश्मीर इशू को रेज करे, पर इंडिया जो है वो अपना बायलेटरल स्टैंड इन द शिमला एग्रीमेंट, जो शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था जहाँ पर ये कश्मीर इशू एक बायलेटरल इशू है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच का इशू है, वो बाहर डिस्कस नहीं होगा एंड बाय द लाहौर डिक्लेरेशन ऑफ 1999। ठीक है, पर 1947-48 में वहाँ पर UN इन्वॉल्व हुआ था, इफ़ यू नो, कि जहाँ पर वो LOC को क्रिएट किया गया, बनाया गया, जब वो कश्मीर इशू और भी ज़्यादा इंटरनेशनलाइज हो गया। सो ये है थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क ऑफ इंटरनेशनलाइजिंग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो वो क्या होगा कि इंडिया का जो स्टैंड है वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में वो चैप्टर 6 में आता है, दैट इज पैसिफिक सेटलमेंट। पैसिफिक सेटलमेंट मतलब वो सॉफ्ट पावर यूज़ करके वो सेटल करना चाहता है रेदर देन एग्रेशन। तो इंडिया कोई एग्रेशन नहीं दिखाना चाहता। दिस अलाउड मल्टीपल नैरेटिव्स डायल्यूटिंग इंडियाज केस। ठीक है, द UN मैप इंक्लूड डिस्क्लेमर्स। तो UN ने जो इंडिया का मैप ड्रॉ किया है, जो जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप अगर देखते हो तो वहाँ पर उन्होंने क्लियरली ये मेंशन किया है, देयर इज़ अ डिस्क्लेमर विच सेज दैट कि फाइनल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नॉट एग्रीड अपॉन द पार्टीज़। ठीक है, तो अगर ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है तो यहाँ पर अगर हम वो LOC को अगर हम देखते हैं, सो इसमें उन्होंने कहा है द फाइनल स्टेटस ऑफ JNK नॉट एग्रीड अपॉन द पार्टीज़। ठीक है, तो उनका भी कोई क्लियर कट नहीं है। फिर अभी रिसेंटली हैपेंड ऑपरेशन सिंदूर और ग्लोबल आउटरीच को देखते हैं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उसको भी इंटरनेशनलाइज कैसे किया गया कि रिसेंटली इंडिया ने एक ऑल पार्टी एनवॉय वो भेजा है आफ्टर द पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर टू रीइंफोर्स इट्स पोजीशन ऑन कश्मीर एंड टेररिज्म, कि हर एक पार्टी से हर एक जो मेंबर्स है, एक मेंबर्स वो अलग अलग कंट्रीज़ में गए हैं टू एस्टैब्लिश द नैरेटिव और द स्टैंड ऑफ कश्मीर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो
देन नेक्स्ट इज इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग एंटी टेरर डिप्लोमेसी, कि इंडिया हमेशा से एक एंटी टेरर डिप्लोमेसी वो चाहता है. ही इट प्रपोज द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म इन 1990, बट इट फेल्ड एक्चुअली due to the disagreement of definition between terrorism and freedom fighter. See, this is so interesting here कि वो जो convention है वो नहीं बना because there was a disagreement of definition कि किसको हम freedom fighter बोले और किनको हम terrorist बोले. ठीक है. एंड लास्टली यूएन's लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस हम अगर देखते हैं कि यूएन एक्शंस आर प्राइमरीली गवर्नड बाय सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन. तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन है तो उनका ही प्राइमरीली वो हाँ चलेगा. नेक्स्ट एग्जांपल अगर दे कि इंडिया का सर्जिकल स्ट्राइक अगर हम देखते हैं और या फिर द बालाकोट एयर स्ट्राइक, दीज आर स्क्रूटिनाइज्ड एंड चेक करने के बाद एंड इट वॉज क्वेश्चनड बाय द एडहरेंस टू द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कि इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे कि ये ठीक हुआ था कि नहीं हुआ था. ओके, सो द नेक्स्ट वन फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन. ठीक है, ये आप अभी का जो दो न्यूज़ होंगे वो रिलेटेड टू प्रीलिम्स है. तो हम देखेंगे यहाँ पर फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन क्या है. फ्लू गैस का मतलब होता है जो हमारे एग्जॉस्ट से, बाइक, गाड़ी, कोई भी फर्नेस हो, बॉयलर्स हो, पावर प्लांट हो, वहाँ से जो गैस निकलते हैं उनको फ्लू गैस कहा जाता है. फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन मतलब सल्फर मुक्त करना. सो FGD जो है इज़ अ टेक्नोलॉजी टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट. ठीक है, वाई टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन पर्टिकुलरली एसिड रेन. मतलब अगर सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाए तो वो जो पोल्यूटेंट है वो कम हो गया. सो उसका जो इफेक्ट होगा वो कम होगा. ठीक है, अभी ये जो FGD है अभी ये थर्मल पावर प्लांट्स में जो यूज़ किया जाता है. क्यों? क्योंकि जो अगर थर्मल पावर प्लांट जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं, कोल बर्निंग होता है, तो वहाँ पर जो सल्फर कंटेंट है इट इज़ वेरी हाई. ठीक है, विच एमिट सल्फर डाइऑक्साइड आफ्टर बर्निंग. तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फेट में कन्वर्ट होता है, सल्फेट एरोजॉल्स एंड कंट्रीब्यूट टू पार्टिकुलेट मैटर. ये सबसे ज़्यादा लंग डिजीज़ करता है. इवन इसको ट्रैप करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है एंड इट लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. तो ये जो टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट कैन बी आस्क्ड इन APSC एज वेल एज UPSC कि फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन क्या है या फिर ये फ्लू गैस क्या है. नेक्स्ट इज द न्यूज़ इज अबाउट ग्रेटा थनबर्ग. सो ग्रेटा थनबर्ग का क्या न्यूज़ है कि इजराइल रिपोर्ट स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग फॉर ब्रीचिंग गाजा ब्लॉकेड. कि यहाँ पर इजराइल नेवी ने जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ से जो सी रूट है उसको ब्लॉक कर दिया है, उसको किसी को पास होने के लिए अलाउड नहीं है. पर ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ 11 एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो थे उन्होंने एड का नाम देकर उस चीज़ को ब्रीच किया है. So who is Greta Thunberg? Greta Thunberg, she is a Swedish and climate activist who is popular for her movement Fridays for Future. Fridays for Future से क्या है, ये स्कूल स्टूडेंट्स, ये एक मूवमेंट है जहाँ पर स्कूल स्टूडेंट्स वो अपने फ्राइडे के क्लासेस मिस करेंगे और वो डेमोन्स्ट्रेशंस में निकलेंगे, रास्ते में एक्शन डिमांड करेंगे फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर्स टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज. ओके, सो ये है फ्राइडेज फॉर फ्यूचर. शी वॉज डायग्नोज्ड विथ एस्पर्गस सिंड्रोम. सो व्हाट इज़ दिस एस्पर्गस सिंड्रोम अगर आ जाए तो ये प्रीलिम्स में. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस एस्पर्गस सिंड्रोम. ये जो है, ये जो ऑटिज़म जो होता है, ऑटिज़म का एक स्पेक्ट्रम है. ऑटिज़म इज़ नॉट अ सिंगल डिसऑर्डर, इट इज़ अ अम्ब्रेला टर्म. सो उसमें जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है वो जो डिसऑर्डर है उसका एक पार्ट है, कंपोनेंट है एस्पर्गस सिंड्रोम. तो वहाँ पर क्या होता है कि जो सोशल इंटरेक्शन है वो करने में डिफ़िकल्टीज आता है, कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी आता है एंड उनका जो बिहेवियर है, बातचीत करने का तरीका है वो बहुत ही रिपीटिटिव होता है. एक ही चीज़ वो बार बार बोलेंगे या फिर करेंगे, उसको कहा जाता है एस्पर्गस सिंड्रोम. सो ग्रेटा थनबर्ग शी हैज़ एस्पर्गस सिंड्रोम एंड दिस आर द अचीवमेंट of Greta Thunberg. From here you can see. So why she was popular in the news since 2018 onwards. So she is Greta Thunberg. She belongs from Sweden. So these are the two MCQs for you to solve. इनका आंसर आप करके हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड स्टूडेंट्स, इट्स एन अनाउंसमेंट कि दिस टाइम मेंस के लिए बाय मयूर चौधरी सर,
he is bringing a differentiator batch of essay कि where he will guide you कि how to write essay or how to think what to write in the essay. ऑलराइट, ऐसे यू नो ऐसे पेपर इज़ इंपॉर्टेंट एंड ऐसे पेपर जो है अगर आप अच्छे से लिखो तो वो बहुत ही स्कोर आपको दे सकते हैं. सो आई विल रिकमेंड यू टू अटेंड हीज क्लासेस एट जस्ट अ वेरी नॉमिनल फी. एंड ऑल्सो देयर इज अनदर पेपर दैट इज GS4 ethics which is excelled by our Pankaj Sharma sir, who has a 10 years of teaching experience of political science and IR and ethics. तो आप उनके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं only for the guidance of ethics. So thank you so much students. We will again discuss on various topics in the next session. Till then, take care.